Hello students, once again welcome to next class of chemical bonding. In today's lecture we will study about limitations or you can say exceptions to the octet rule. You have learned up till now about ionic bond, covalent bond, coordinate dative bond. You also know how to write Lewis dot structures of atoms as well as molecules, and now actually in first lecture you were told that atoms combine to satisfy two conditions. Number one, to complete their octet of electrons, which is called octet rule, and number two, to minimize their potential energies. So here we are going to put limitations to octet rule. First limitation is H2 molecule. You know, in H2 molecule, each H atoms completes 2 electrons because first orbit of H atom is the outermost, is the valence orbit, and first orbit can have maximum of 2 electrons. So H2 molecule, in H2 molecule, H atom is not having octet. So we can say it is an exception to octet rule. Second is electron deficient molecules. There are many molecules in which the central atom is not having octet of electrons. The central atom is not having 8 electrons. For example, we have LiCl, lithium chloride molecule. Lithium EC is 2s1, 1s2, 2s1. Lithium has 1 dot. Cl, atomic number 17, has 7 dots. It seems as if lithium will lose an electron and Cl will gain an electron. Li plus and Cl negative will get held together by ionic bond, and this bond will be ionic, but no. The bond between lithium and chloride is not ionic because lithium is very small sized atom. In first group, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. If we don't see hydrogen, lithium, among alkali metals, lithium is having the smallest size. Due to very small size, ionization enthalpy of lithium is too high to lose electron. तो lithium atom की जो ionization enthalpy है, साइज़ छोटा होने के कारण इतनी हाई है कि लिथियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. एंथैल्पी चेंज हाईली पॉजिटिव है. एक बात. दूसरी बात, जो क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव आयन बनता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो लिथियम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ड्यू टू इट्स हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. हम इन नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर एक पढ़ेंगे टॉपिक फाजान्स रूल्स. उसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि कैसे आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर आ जाता है. ओके, तो यहाँ अभी हम इतनी बात समझते हैं कि ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज़ जो लिथियम है वो पॉजिटिव आयन नहीं बनाता, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, Cl के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. So LiCl is a covalent compound. Okay, अब इस कंपाउंड में Cl का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 7 उसके अपने थे, 1 उसने शेयर कर लिया. बट लिथियम को क्या मिला? उसने तो 1 ही शेयर किया है, इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अच्छा, एक बात और, हमें क्या पता कि ये वाकई कोवलेंट कंपाउंड है ना. NaCl भी तो है, NaCl कंपाउंड आयनिक है,
LiCl कोवलेंट है. व्हाट इज़ द प्रूफ? प्रूफ ये है वेरी सिंपल. आपने पढ़ा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक. जो चीज़ जिस नेचर की होती है वो उसी नेचर के साथ ही मिक्सिबल होती है, मिक्स होती है, डिजॉल्व होती है. ठीक है. तो NaCl को डालते हो वाटर में, वाटर भी पोलर है, आयनिक है, NaCl भी आयनिक है, तो NaCl घुल जाता है. बट इफ़ वी पुट LiCl इन वाटर इट इज़ insoluble. And if we put LiCl in some organic solvent like kerosene, like petrol, it is fairly soluble. So it is proving that nature of LiCl matches with organic compounds, so it is covalent in nature. Okay. So LiCl is electron deficient. Similarly, BeCl2. In BeCl2, beryllium has 2 dots. And Cl 7 dots. This compound is also covalent. Cl is completing its octet, but beryllium is not completing, it is electron deficient. Similarly, many other compounds of boron like Bf3, compounds of aluminium like AlCl3, all these compounds of lithium, beryllium, boron and aluminium, they don't form ionic compounds due to their very high electronegativity. They form covalent compounds, and in covalency their octet is not satisfied. Octet of central atom is not satisfied. So such compounds are called electron deficient compounds, and it is a limitation of octet rule. Okay. Similarly, third limitation is expanded octet compounds. ऐसे कंपाउंड्स हम देखते हैं जिनमें सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से भी ज़्यादा हो गए, ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया, है ना. सो सच कंपाउंड्स में बी कॉल्ड एक्सपेंडेड ऑक्टेट कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल, बड़ा कॉमन कंपाउंड है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. इट इज़ ए कोवलेंट कंपाउंड. इफ़ वी राइट EC of phosphorus, तो यू नो फास्फोरस इज़ ए मेंबर ऑफ N फैमिली. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. N के 5 डॉट्स, P के भी 5 डॉट्स. तो जो भी इसकी EC हो, डॉट्स तो 5 ही है ना. हर Cl के साथ एक एक शेयर किया, क्योंकि Cl के 7 डॉट्स हैं. ईच Cl इज़ हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. Cl को एक चाहिए, शेयर किया. Cl का तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, बट यू सी फास्फोरस के कितने पूरे हुए, कितने हो गए? 5 थे, 5 के 5 शेयर कर लिए, 5 मतलब उसके 10 हो गए. ऑक्टेट से भी बढ़ गया ये. ठीक है. तो इन दिस मॉलिक्यूल, इन दिस कंपाउंड, central atom is having more than 8 electrons, so it is called expanded octet compound, and it is showing limitation, or you can say exception to octet rule. Similarly, SF6 सल्फर बिलोंग करता है O फैमिली को. सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 डॉट्स हैं. F को एक चाहिए लाइक Cl, लेकिन जब इसके साथ 6F लगेंगे तो आप समझ गए कि सल्फ़र के तो फिर 6 + 6 12 हो गए. इट इज़ आल्सो एक्सपेंडेड ऑक्टेट. IF7 है, I भी हैलोजन है, F भी हैलोजन है. दे आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. I के भी 7 डॉट्स हैं, F के भी 7 डॉट्स हैं, लेकिन I 7F के साथ अपना डॉट शेयर कर रहा है. 7 + 7 14 हो गए. Expanded octet. Okay, so these expanded octet compounds are also showing limitation to octet rule. Then yesterday we talked about odd electron molecules like NO2, NO. याद आया? पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जब इन दोनों की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो ऑक्टेट नहीं पूरा होता, एक एक
ऑड इलेक्ट्रॉन बचता है। तो जितने भी ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स कंपाउंड्स हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर आल्सो एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। ओके, तो 4 एक्सेप्शंस हो गई। देन नेक्स्ट आप कह सकते हो कि जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम और नियॉन का तो आज तक कोई कंपाउंड नहीं बना, बट आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन के कंपाउंड बन चुके हैं। जीनॉन के कंपाउंड तो 12th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे उनको 12th में, ठीक है। जैसे XeF2, XeF6 वेरी कॉमन कंपाउंड्स हैं ये, है ना। तो नोबल गैसेस को हम ग्रुप 0 इसलिए बोलते थे कि देयर वैलेंसी इज़ 0, दे हैव नो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। देन व्हाई दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स? इट मीन्स ऑक्टेट रूल इज़ नॉट ए satisfactory condition for bond formation. So noble gases compounds are also showing limitation to octet rule. Then next problem is, इसको हम 5th बना लेते हैं। 5th limitation, noble gas molecules और compounds, ठीक है, ये 5th हो गई। 6th limitation आप कह सकते हो कि shapes of molecules, कि मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स होती हैं उनके बारे में ऑक्टेट रूल कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करता। जैसे हम जब भी वाटर ड्रॉ करते हैं हम ऐसे लिखते हैं HOH, देखा होगा आपने कि मैं ऐसे ही लिखता हूँ V शेप में, है ना, बेंट शेप में। क्यों? देयर इज़ सम रीज़न। जब हम कल से शुरू करेंगे मॉलिकुलर ज्योमेट्रीज, मॉलिकुलर शेप्स, वहाँ आप समझ जाओगे कि वाटर को ऐसे क्यों लिखते हैं, अमोनिया को पिरामिडल शेप में क्यों लिखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की शेप्स ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करता, उसके लिए हमको कुछ और पढ़ना है, वो एक्सप्लेन करेगा, ठीक। एक प्रॉब्लम हम और बता सकते हैं, नंबर 7 लिमिटेशन कह लो, कि रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो उसके बारे में भी ऑक्टेट रूल हैज़ नो लॉजिक। लाइक देखो, वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं, 2 H हैं, 1 O हैं। ओजोन मॉलिक्यूल में भी 3 एटम है, आपने कल बनाया था, है ना, उसका आपने फॉर्मल चार्ज भी निकाला था हमने, वो भी मैंने ऐसे ही ड्रा किया था V शेप में। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल इज़ हाईली स्टेबल। वाटर को हीट करते जाओ, इवेपोरेट हो जाएगा, गैस बन जाएगा, स्टीम बन जाएगी। स्टीम को हीट करते जाओ तो भी H2O मॉलिक्यूल को कुछ नहीं होगा। जब टेम्परेचर 1000s में होएगा ना, तब ये बॉन्ड टूटेगा। 2000 समथिंग इसकी होती है बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। तो H2O इज़ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। लेकिन ओजोन मॉलिक्यूल पता है क्या है? रूम टेम्परेचर पे ही हल्की सी इसको सनलाइट लगती है तो ओजोन मॉलिक्यूल डिकम्पोज करके O2 अलग हो जाता है, एक O अलग हो जाता है ना। आपने पढ़ा था किसी क्लास में कि एक ओजोन लेयर होती है ना, वो ओजोन लेयर बनती है सन की रेडिएशन से, यूवी रेस को वो एब्जॉर्ब करती है, वटएवर। तो वो ओजोन लेयर क्या होती है कि वो डिकम्पोज होती रहती है, नया O2 मॉलिक्यूल्स मिलके ओजोन बनाते रहते हैं, और ओजोन जो है वो डिकम्पोज करके O2 बनती रहती है। एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बना रहता है। जब वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स पता करता है। आपने पढ़ा ये EVS वगैरह में, है ना। तो ओजोन जो मॉलिक्यूल है वो वेरी मच अनस्टेबल है, H2O वेरी मच स्टेबल है। ओजोन भी 3 एटम्स का बना है और वाटर भी ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम्स का बना है। तो वाई इट इज़ सो? ऑक्टेट रूल हैज़ नथिंग टू से। ओके, सो दिस वाज अबाउट द limitations to the octet rule, exceptions to the octet rule. अब हमने एक बार डिस्कस कर लिया
आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन भी आपको आ गया, वो भी आपने सीख लिया। देन आपने पढ़ लिया ये लिमिटेशन। ओके, अब बिफोर मूविंग अहेड, अब हमको मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया क्लियर करना है। बट उसको स्टडी करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, वो है बॉन्ड पैरामीटर्स। जब दो एटम्स में कोई बॉन्ड बनता है ना, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे 2H एटम में सिंगल बॉन्ड है, वाटर के अंदर H और O में सिंगल बॉन्ड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में HOS, आपने कल बनाई थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, H और O में सिंगल बॉन्ड है, ये भी है ना। Cl में सिंगल बॉन्ड है। तो ये सारे हैं तो सिंगल बॉन्ड्स। क्या सारे एक जैसे हैं? नो, बॉन्ड में कुछ तो डिफरेंट होता है। जैसे सपोज करो मेरी शर्ट है, वो आपको पूरी नहीं आएगी, आपकी शर्ट मेरे सूट नहीं करेगी। अगर मैं टेलर को कपड़ा भेज दूँ, है ना, कि इसकी शर्ट बना के मेरे को भेज दे, वो कहेगा सॉरी सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसको क्या चाहिए? मेरी बॉडी के पैरामीटर्स, कि शर्ट की लेंथ कितनी होएगी, चेस्ट का साइज़ क्या है ना, आर्म्स की लेंथ कितनी है। तो 3-4 बातें उसको चाहिए, है ना। तो जैसे वो हमारी बॉडी के पैरामीटर्स हैं, वैसे ही ये बॉन्ड्स आपस में डिफ़र करते हैं in terms of their parameters, and there are 4 parameters of bond. One is bond length, हर बॉन्ड की अपनी अपनी एक लेंथ होती है। इसकी लेंथ सेम थोड़ी होएगी, है ना। देन बॉन्ड एंगल होता है, देन बॉन्ड ऑर्डर होता है, एंड देन बॉन्ड एंथैल्पी होती है। सो दीज आर 4 पैरामीटर्स ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, जिनको हम ऑफन यूज़ करेंगे इन फॉलोइंग चैप्टर्स। ओके, सो फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ। आपको फर्स्ट लेक्चर में जब हमने केमिकल बॉन्डिंग शुरू की थी, काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तब बताया था कि एक तो ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करना है, दूसरा जब 2 एटम पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर कम हो रहा है तो वो पास आते जाते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो जिस डिस्टेंस पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है, वो उसी डिस्टेंस के अराउंड वाइब्रेट करते रहते हैं, और उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है भाई। तो 2 एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है, जहाँ पे 2 एटम्स की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, दैट डिस्टेंस में बी कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो आप डिफाइन कर सकते हो average distance between the nuclei, or you can say average internuclear distance of bonded atoms. Atom bonded हो, atoms में कोई bond बना हो, है ना। So the average distance between the nuclei of 2 bonded atoms is called bond length. अब आगे अगर वो बॉन्ड कोवलेंट है तो इसको आप कोवलेंट डिस्टेंस भी कह सकते हो। वांडरवाल, जैसे आपने 3rd यूनिट में डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाई पढ़े थे, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, क्योंकि एटम्स अकेले तो रहते नहीं, एटम्स डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो अगर एटम कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहा है किसी के साथ,
अगर वो आयनिक बॉन्डिंग कर रहा है किसी एटम तो वही है, तो उसका कोवलेंट रेडियस कुछ और होएगा, उसका आयनिक रेडियस कुछ और होएगा। ऐसे मॉलिक्यूल में भी अट्रैक्शन होती है, तब आ जाता है वान डेर वाल रेडियस। वो तो बात थी रेडियस की, हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की, है ना। बॉन्ड जो है वो दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस, यानी कि रेडियस का डबल हो गया, फिर ऐसे भी कह सकते हो। ओके, अच्छा, बॉन्ड लेंथ को मैयर किस में करते हैं, यूनिट्स क्या होंगे इसके, जो लेंथ के होते हैं। लेंथ होती है मीटर में, लेकिन बॉन्ड लेंथ तो बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, इसको हम लेते हैं पिकोमीटर में या नैनोमीटर में या डिग्री एंगस्ट्रॉम में। यू नो, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, और नैनोमीटर -9 होता है, एंगस्ट्रॉम -10 होता है ना। तो ये अपनी मेमोरी ब्रश अप करो, ये हमको चाहिए ये चीज़ें न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में। देन एक आपके माइंड में और आता होगा कि प्रैक्टिकली किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करते हैं। तो वो हमारी ऑर्डिनरी लैब्स में नहीं होता, बड़ी बड़ी लैब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं, एक्सरे टेक्निक्स होती हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे जिनसे हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं बॉन्ड लेंथ्स अमंग एटम्स। ओके, नाउ second is bond angle. The term bond angle comes into play when one atom is forming bond with two atoms simultaneously. क्या समझे कि एक एटम है, उसने एक बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया, एक किसी और के साथ बना लिया, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, कम से कम 2। जब एक एटम इससे बॉन्ड बना रहा है, इससे भी बना रहा है, तब उन दोनों बॉन्ड्स के बीच में कोई रिलेटिव एंगल होएगा, है ना। देखो, जैसे कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, एक कार्बन का एटम 2 O एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और एक H का एटम भी, एक O का एटम भी 2 H के साथ बॉन्ड बनाता है। बट आप देखो, मैंने यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा करी है, यहाँ मैं ऐसे करता हूँ हमेशा। ये एंगल आप देख रहे हो कुछ और है, ये एंगल कुछ और है ना। अप्रॉक्सीमेटली ये कितना है, 180, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है, ये 180 से कम है ना। ये वाटर में 105 डिग्री होता है। तो दिस रिलेटिव एंगल बिटवीन 2 bonds formed by an atom is called bond angle. It is also average. Average word यहाँ भी आएगा। देखो, जैसे H2O मॉलिक्यूल है, O है, 2 H हैं, पास आए एनर्जी बढ़ी, पीछे हो गए, और पीछे हुए एनर्जी बढ़ी, पास आ गए। तो कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, मूव कर रहे हैं, मोशन में है, तो एवरेज वर्ड यहाँ भी आएगा। देन आ गया, अच्छा, बॉन्ड एंगल मेजर करेंगे डिग्रीज़ में, 180 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे BCl3 मॉलिक्यूल है, उसमें 3 Cl ऐसे होते हैं कि ईच बॉन्ड एंगल इज़ 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ठीक। देन आ गया बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम्स में कितने बॉन्ड हैं? 1 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है 2 एटम्स का, तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल या डबल? 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होने का मतलब क्या हुआ? 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड। दिस टर्म वी विल डिस्कस टुमारो। एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, रेजोनेंस। जितना काम हम कर चुके हैं ना केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें एक लिमिटेशन और आ जाएगी
जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट चाहिए रेजोनेंस का। रेजोनेंस में आप पढ़ोगे कि 1.5 और 2.5 बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी इसको यहीं पे पेंडिंग रखते हैं। सो दिस इज अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। नाउ लास्ट बॉन्ड पैरामीटर इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी इज एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, है ना। आपने पढ़ा कि जब दो एटम, कोई ए एटम है कोई बी एटम है, जब उनमें बॉन्ड बना, बॉन्ड क्यों बना? अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। तो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हीट रिलीज होती है। वाइस वर्सा, जब आपने बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे भी डिफाइन कर लो, लेकिन बुक्स में ऐसे डिफाइन करेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड और एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन ए बॉन्ड इज डिसोसिएटेड। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात कि हम कोई एक मॉलिक्यूल या एक एटम लेके तो बात नहीं करते, एक मोल होता है और मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। एक बात तो ये। दूसरी बात देखो, जैसे CH बॉन्ड है, सपोज किसी न्यूमेरिकल में आया कि CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी 286 किलो जूल पर मोल है। पर मोल का मतलब हो गया एक मोल, कि एक मोल CH के बॉन्ड्स हैं, CH टोटल कितने बॉन्ड्स हैं? 1 मोल। उसकी कितनी बॉन्ड एंथैल्पी है? इमेजिन, जस्ट मान लो 286 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक मोल ऐसे बॉन्ड बनेंगे तो इतनी हीट रिलीज होएगी। वाइस वर्सा, जब एक मोल ऐसे बॉन्ड्स को तोड़ना होगा तो इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे भी वर्ड एवरेज आता है। वो एवरेज क्यों आता है? सपोज मॉलिक्यूल है मीथेन का CH4। अब मीथेन के मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 हैं। ठीक है, अब चारों एक बार तो टूट नहीं जाएंगे, प्रोसेस होएगा तो स्लोली होएगा। मीथेन का मॉलिक्यूल है, सबका ऑक्टेट पूरा है, मॉलिक्यूल स्टेबल है। ठीक, पहला बॉन्ड तोड़ना है ये वाला, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। ठीक, अब ये बॉन्ड जब टूट गया, इसके टूटने के बाद ये स्पीसीज अनस्टेबल हो गई, डिस्टर्ब हो गई, ऑक्टेट ख़राब हो गया कार्बन का, है ना। अब ये अनस्टेबल बन गई है। अब ये स्टेबिलिटी कम होने का मतलब है कि अब जब ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ना है, सेकंड वाला, इसको डिसोसिएट करना है, क्या जितनी एनर्जी हमने पहले सप्लाई करी थी फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए, क्या सेकंड को भी उतनी ही देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, या उससे कम या ज़्यादा? गैस बोलो। कम पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही अनस्टेबल हो चुका है। अब इसके टूटने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले वो स्टेबल था, है ना। अब वो ख़राब हो चुका है, अब वो कहता है तोड़ दो, टूटा तो मैं हुआ हूँ ऑलरेडी, है ना। तो दूसरे को डिसोसिएट करने के लिए हीट कम सप्लाई करनी पड़ेगी, तीसरे को और कम, चौथे को और कम। सपोज़ पहले को करनी पड़ी 313, दूसरे को उससे कम, सपोज़ 295, तीसरे को और कम, सपोज़ 275, चौथे को और कम, सपोज़ 263। तो अब CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? हमको क्या करना पड़ेगा? इन चारों का सम करके डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। सपोज़ वो एवरेज आ गया 286। जो बुक में वैल्यू लिखी होती है ना, वो एवरेज होती है। जितनी भी आप बॉन्ड एंथैल्पीज के न्यूमेरिकल्स करोगे, थर्मोडायनामिक्स में भी करोगे, तो ये एवरेज एंथैल्पीज होती हैं। वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट आएगा,
बट हम इसको यहीं पे ही फिनिश कर देंगे, वहाँ हम ये डिस्कस नहीं करेंगे टॉपिक, ठीक है। व्हाट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी नाउ फाइनली? तो आंसर इज एवरेज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of one type of bonds are formed or dissociated. When bond is formed, enthalpy change is negative, process is exothermic. When bond is dissociated, enthalpy change is positive, the process is endothermic. Is it okay? Is it clear now? So these are the 4 bond parameters. So in today's lecture we have learned firstly exceptions to octet rule, and second topic is bond parameters. Tomorrow we will study the concept of resonance, which is also required to explain bonding, and after explaining resonance we will move towards shapes of molecules. Okay, so till then, goodbye, thank you.